Hi guys, what's up? Welcome back to the channel again. So this is the chapter 5 of the Zero to Hero series, in which I am covering the UIADA and UIADB certification in UiPath Academy. Let's get started. Okay. So for this, let's create another process. Let's name it chapter 5. Okay, and this is gonna be very important because we're gonna be covering control flow in this. So if condition, right? So we'll be discussing what is if condition in UiPath and how it can be used to manipulate your workflow according to your needs. Okay, let's get started, guys. So in this, let's first jump back to the academy, because this is the next assignment in our academy, control flow in studio. In this we'll be covering if statement, loops, and the switch and for each as well. Switch and for each is in practice, so we'll be covering while, for each, we'll be covering if statement, if condition. Guys, if is in condition, not a loop. We'll be covering loops, the while, do while, and for each, and we'll be covering the switch scenario, that how we can switch between simple cases, and the workflow will be going towards that specific case when we'll be giving that specific condition. But in this video we'll be only discussing about the if condition. Let's get started, guys. Okay, so the if condition, you can say that it consists of the following elements. I'll just show you, and then it will be way more clearer, because see, all this you can read, right? This won't be showing any practical. You can watch this video, but again, this involves a bit complexity also. I'll be easing out of it, right? Okay, so let's go here, and if ये जो वीडियो होता है ना, जो आपको अकेडमी में मिलता है, ये सोचते हैं कि आपको पहले ही सब कुछ आता है, राइट? तो दे विल ऑल यूज दैट कंडीशंस एंड ऑल, तो दे नो दैट दे आर ए प्रो. बट इफ यू आर, व्हाट अबाउट इफ यू आर नॉट ए प्रो? देयर आई कम, right? So let's get started. So guys, we are learning the if condition, and if I'll just use if, so you can see that यहाँ पे else if लिखा है, यहाँ else if अलग अलग लिखा हुआ है. तो हम यहाँ पे if condition अभी देख रहे हैं. we'll be also seeing else if in this video only. Okay, let's get started for if condition. तो ठीक है, यहाँ पे जैसे बॉक्स है, इफ कंडीशन आ गई, यहाँ पे हमारा ऑलवेज इट विल बी शोइंग द कंडीशन, विच कंडीशन इट इज़ टू फुलफिल. इफ इट फुलफिल्स द फ्लो, द कंट्रोल मीन्स द एग्जीक्यूटर, मीन्स उस समय मेरा जो क्या कहते हैं यूआई पाथ है, उसका एग्जीक्यूटर है, वो कहाँ पे है. दैट इज़ द फ्लो इन यूआई पाथ, राइट? इस समय मेरा फ्लो कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्लो इज़ इन दिस पार्ट. Now the flow will come to this part, now the flow will come to this part, the flow will come to this part, etc, etc. Okay, so this part contains the condition, that what the condition it is. Anything, it can be anything, right? So if you will create any variable over here, it will be always of the type boolean. I told you in the variable type, that is true or false. If this condition satisfies, we'll be expecting the flow, the control flow, to go inside this. Then see, if something is true, then only it will be doing this, else it will be doing this part, right? So let's take a very easy example. Okay, let's use an assign activity over here, and we will be using you can say int num. Okay, int num means it will be a number. Let's use 16, right? And okay, we have to change it as well, because the default, when you will be creating any variable, it will be going to the type of string, not int32. We'll be converting it to int32 as well over here, right? So it is pushing the value 16 to this variable of int32 type, integer underscore num, right? Now if I'll say that this part over here, int underscore num, it is showing an error, because see, as I told you, that this will be converting it to boolean value, right? And this is a what? This is an integer value, right? So this is 16, right? So if I'll be using convert dot to boolean, so
int num is not a okay, sorry, I have to use this. Okay, so now I have converted my integer to a boolean part, right? If this value is inside this and it is showing over here that int num is containing 16 and this is that's containing 16, we have converted this part to boolean because as I told you, this condition will be true or false, right? It will be either true, either false. So if it is true, let's use the right line. Just a very simple, this is example, right? So I'll just say number exists, and I'll just write another right line over here and I say number does not, yeah, okay, I can say number does not exist. Okay, let's run this and I'll let you know that what is going on. ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है everything. मैं debug पे click किया, everything I'll let you know later. Just now please follow me. Okay, so yeah. So as you can see that our output is number exists, yes, because so 16 is inside our this variable and this is over here. So what it did, as you, I hope that you are understanding it very clearly. अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू 16 थी, इसके अंदर मैंने इसको पुश किया. आई पुश दिस वैल्यू टू हेयर इन दिस वेरिएबल. अब टाइप इन 32, मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे इन 32, एंड आई यूज एन इफ कंडीशन, right? It is what it is. I'll just write it also over here. It is checking whether whether int num is true or not. Right? It is checking whether int num is true or not, or it contains this value or not inside this this variable, right? So I have used the condition if. मैंने यहाँ पे condition डाली है इस pattern पे. I have converted the integer to a boolean value. ये always true या false लेगा, ठीक है? So I have converted this part integer to a boolean value, okay? And it will be only and only accepting the boolean parts only, ठीक है? boolean ही लेगा if condition, और कोई part नहीं लेता है. तो you have to convert a string or your integer to a boolean part. जो भी आप इसमें ले रहे हो, you have to always convert it, ठीक है? और यू हैव टू यूज़ सम फंक्शंस इन VB.NET जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो आपकी जो भी टाइप है उसको बूलियन में, राइट? So I am using a right line over here, and if this part is inside of this, it will be showing a number exists. If this part isn't inside of this, I will be showing number does not exist. ठीक है, ये बहुत सिंपल इफ कंडीशन है. आप अपने हिसाब से इसको टेलर कर सकते हो, राइट? आप इसको UI ऑटोमेशन में आगे जाके बताऊंगा. एंड आई विल बी यूजिंग सम इफ कंडीशन एज वेल. आई हैव ऑल्सो यूज इन द फ्रेमवर्क ऑल्सो. अब आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, and उस पे I have used many if conditions and I've explained it in depth. Please go and watch all those videos if you haven't. Okay, so this is the proper if condition in UiPath, and it is very helpful in complex scenarios, complex processes as well, जो हम आगे करेंगे, ठीक है? So I hope that it is understood that this condition will be only and only accepting true and false. It is also asked in the interviews as well and in the exams as well. Certification is what is the expected condition type of if. So you have to say it will be boolean, right? Or the variable type of this part is boolean, right? अगर आप इतने पार्टों का सेव भी करते हो तो you have to इतने पार्ट को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो you have to save it inside a boolean variable type. ठीक है, आप ऐसे ही सेव करोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, डबल कर रहे हो, आप एरे कर रहे हो, नहीं, यू हैव टू सेव इट इन द बूलियन टाइप. गॉट इट? ठीक है, बहुत सिंपल है. ओके, ना इसमें हम एक और कंडीशन देखते हैं. जैसे इफ़ वी हैव अनदर एक्टिविटी else if, oh sorry, I have another activity called, one second, I have another activity called else if, or in coding languages it is also known as elif.
EL हटा दो, इफ, एलिफ में एल्सिफ, गॉट इट, ओके. सो गाइस यहाँ पे जो चीज़ हम करने वाले हैं अभी वो है दैट वी आर गोना बी सीइंग दैट हाउ वी कैन यूज अ नेस्टेड इफ कंडीशन इन UiPath एंड वी कैन यूज इट टू tailor our workflow according to our needs. ठीक है, अब the body execute as long as this condition is true, means this part should be true. अगर ये पार्ट ट्रू है तो मैं इसे क्या करूँगा, आगे बॉडी में आगे जाते रहूँगा. देन पार्ट है तो यू कैन कंसिडर दिस पार्ट, इसको आप अगर हटा दोगे यू कैन कंसिडर दिस पार्ट एज देन ओनली. बट यहाँ पे क्या है, एड एल्स इफ और एल्स. मैं एल्स इफ बताता हूँ क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से वही लिख लेते हैं दैट आई जस्ट से दिस टाइम आई जस्ट चेंज द सिनेरियो. मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूँगा. ठीक है, सो नॉट दिस, just change it as well. I can say that name. Okay, so ये मेरे name part है and obviously string है तो क्या है, quotes के अंदर होगा, मैंने आपको बताया था. So I'll just say UI path with J. Right, there is a channel name, my channel name. Okay, and ये मेरा string है, it is stored in the string variable and variable का नाम है string name. राइट नाउ अब आई चेक दैट इसके अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड और एक स्पेसिफिक लेटर अवेलेबल होगा तो ये यहाँ पे अंदर जाएगा, नहीं तो ये एल्स कंडीशन या एलिफ कंडीशन के एल्स इफ कंडीशन के अंदर जाएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है, नाउ व्हाट आई हैव डन, दिस स्ट्रिंग पार्ट इज इनसाइड ऑफ दिस पार्ट str_name and we are using this part, so indirectly we are using this string over here, and this is the beauty of variable, this stores the data in a single workflow. ठीक है, मैंने आपको इसके पहले ग्लोबल कॉन्सेप्ट और ग्लोबल वेरिएबल्स भी बताए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये एरर दे रहा है बिकॉज ये क्या है, ये स्ट्रिंग पार्ट है. यहाँ एरर भी देखिएगा क्या है, ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन डिसअलाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू बूलियन. राइट, वी हैव टू कन्वर्ट माई टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू बूलियन. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव अनदर ऑप्शन, कन्वर्ट टू बूलियन तो है, तो कन्वर्ट कर देगा इस पर. अगर मुझे चेक करना है कि एक स्पेसिफिक वर्ड और एक स्पेसिफिक लेटर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ कंटेन्स. कंटेन्स ऑलवेज वर्क्स विद अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है, इट वोंट बी वर्किंग विद अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग, देन वी कैन यूज अ कंटेन्स टाइप ऑफ वेरिएबल्स. राइट, ओके, आई होप दैट दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर गाइज. यहाँ पे हमने क्या किया है अभी. ठीक है, प्रिटी सिंपल, मैं आपको एक डेप्थ में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सी वेरी केयरफुली, प्लीज़ फोकस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने str_name ले लिया है, दिस पार्ट कंटेन्स दिस स्ट्रिंग ओवर हेयर, राइट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव कॉल्ड अ VB.NET फंक्शन कॉल्ड कंटेन्स. अब इसके अंदर क्या ये ढूंढेगा तो वैल्यू एज कैरेक्टर, मीन यहाँ पे क्या है, मुझे वैल्यू एज करेक्टर दे रही है एंड इट्स आउटपुट विल बी एज व्हाट, एज बूलियन. तो यहाँ पे ये चल जाएगा, आई डोंट हैव टू यूज कन्वर्ट टू बूलियन अगेन एंड अगेन फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन. समझे ना आप, कि जैसे str_name.contains है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज अ बूलियन वैल्यू इनसाइड ऑफ इफ कंडीशन. अगर मैं ये कंडीशन नहीं यूज़ करूँगा तो मेरा आउटपुट रॉन्ग आएगा, इट विल बी शोइंग एन एक्सेप्शन एंड एरर. ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे डॉट कंटेन्स यू गाइस कैन राइट, एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पे लिखूँगा अगेन, आई कैन राइट जे, राइट. तो अब यहाँ पे क्या है, ये पार्ट मेरा पूरा का पूरा पार्ट इट इज़ रिटर्निंग अ बूलियन वैल्यू जो इफ के अंदर रिक्वायर्ड है. सो आई डोंट हैव टू यूज कन्वर्ट टू बूलियन अगेन एंड अगेन. आई होप दैट दिस इज फाइन बाय यू गाइस. ओके, ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है आपको दैट हमने यहाँ पे क्या है. str_name.contains इज अ फंक्शन विच विल चेक इनसाइड ऑफ दिस स्ट्रिंग दैट वेदर दिस पार्ट JAI इज अवेलेबल और नॉट. राइट, अगर ये अवेलेबल होता है तो सिंपल आई यूज अनदर राइट लाइन. यू कैन, आप राइट लाइन यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एनी एक्टिविटी यू कैन यूज़ अ फ्लो चार्ट ऑल्सो ओवर है, वो आपको बताऊंगा. मैंने वैसे बता रखा है मेरे पूरे वीडियो में, पुराने वीडियो पे, बट यू गाइस कैन सी अगेन. ठीक है, आई जस्ट से कंटेन्स. ठीक है, और अगर ये नहीं करता है तो यहाँ पे क्या है, एल्स है. मैं एलिफ बता रहा हूँ क्या है. ठीक है, सो राइट लाइन अगेन, आई जस्ट से डज नॉट कंटेन्स. लेट्स रन दिस एंड दिस चेक इट आउट, यहाँ पे क्या चल रहा है. उप्स,
ठीक है, तो आप लोगों ने, मैं इसको ना एक बार रन से चलाता हूँ बिकॉज मैंने भी आपको डीबग नहीं बताया है. द पुराने पीपल यू नो डीबग क्या है, बट आई जस्ट से दैट व्हाट इट इज. सो वन सेकेंड. रन. ओके, रन हो गया मेरा वर्क फ्लो एंड इट इज़ रिटर्न्स एज कंटेन्स. ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट रन फ्रॉम डीबग ओनली, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए. मैं इन तरीके से बता दूंगा आपको. यहाँ गया, दिस इज़ द फ्लो, जो जा रहा है ना 12 बॉक्स का, ये फ्लो है. आप देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर, आई जस्ट राइट, प्लीज़ फॉलो विद मी फॉर दिस पार्ट. ओके, यहाँ पे ये साइन के अंदर गया एंड देन एल्सिफ के अंदर गया है ये. इट हैज़ चेक दैट कंडीशन, इट हैज़ गॉन इनसाइड दैट देन बॉडी बिकॉज व्हाट, ये जय इसके अंदर है. ठीक है, एंड ये कंटेन्स किया, इसने वो ऑप्शन यहाँ पे राइट किया है. ठीक है, इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ रिटन दिस कंटेन्स ओवर हियर एंड देन इट वेंट टू अगेन टू एग्जिट द लूप. अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर इसको मैं चेंज नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ एक्स सी जेड एक्स ऐसे करके कुछ भी लिख देता हूँ. इफ आई रन दिस नाउ, लेट्स सी, आई प्रेस दिस मैं बताऊंगा एवरीथिंग. नाउ देखो यहाँ पे क्या हो, एल्स के बाद इट वेंट टू द एल्स. दिस कंडीशन गलत है, मैंने बताया था ये यहाँ गया है. एल्स दैट डज नॉट कंटेन्स विल बी प्रिंटेड एज हियर. ठीक है, होप दैट इज़ क्लियर गाइज, वेरी सिंपल. ठीक है, अब इसमें ना एक और कॉम्प्लेक्स कंडीशन आती है, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स बट ओके. नाउ लेट्स सी दैट हमारे पास यहाँ पे मैं देन के बाद एक और नेस्टेड कंडीशन डाला. नेस्टेड मतलब एक के अंदर लाइक हेयरार्की की तरह. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऐड एल्स और ऐड एल्सिफ और एल्स. सो यहाँ पे क्या है, मैं अगर एक और एल्सिफ डाल देता हूँ तो बट इट विल बी चेकिंग वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और नॉट. अब यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, अगर मैं एक और एल्सिफ है. ठीक है, सो आई जस्ट से दैट str name dot contains, I just say j, बिकॉज ये कैरेक्टर भी बोल रहा है राइट. आई हैव टू सी दैट ये क्या बोल रहा है. एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज स्ट्रिंग भी है. ये एरो आप देख रहे हैं, 2 एरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब टाइप की वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट करता है. तो इट इज़ सेइंग एज स्ट्रिंग एज वेल एंड इट इज़ सेइंग एज कैरेक्टर एज वेल. दैट इज़ वाई मैं वहाँ पे पूरा वर्ड डाल पा रहा हूँ. दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं अभी ये कर पाऊँगा, मैं खाली जे डाल दूँगा. ठीक है, यहाँ पे जे अवेलेबल है हमारे पास राइट. एंड अगर मैं इसको स्मॉल में देखूँगा तो नहीं लेगा, इट शुड बी एग्जैक्टली एज इट इज़ जो मेरे वेरिएबल में सेव्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको दोबारा से राइट लाइन करते हैं. I'll just say contains and it will be 2. इसको मैं कर देते contains and it will be 1. ठीक है, and just run this part and let's press this obviously. अब यहाँ पे क्या हुआ, zx नहीं मिला उसको obviously, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा. ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना obviously. and it has checked that condition. इसको कंडीशन मिल गई है तो यहाँ पे ये कंटेन्स 2 को प्रिंट करा देगा. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. ये एक ही है मेरा पूरा बॉक्स, एक ही बॉक्स है. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अगर एल्स कर दूंगा, मतलब ये देन है, ये इसी कंडीशन का एल्स है. ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ राइट लाइन, इफ आई राइट दैट डज नॉट कंटेन्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं डालूंगा, जो अगर फॉल्स होगी तो वो यहाँ जाएगा. गॉट इट. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज़ लाइक दिस. अभी मैं एक काम करता हूँ, जस्ट से यू भी अवेलेबल है हमारे पास. लेट्स सी व्हाट हैपेंस राइट. सो नाउ आई प्रेस स्टेप इनटू. ठीक है, यहाँ यह क्योंकि यू क्या है, यू मिला इसको, इट रोड यू एंड देन ये पूरा का पूरा बाहर आ गया. अब ये गाइज यहाँ पे ना एक चीज़ है, ये जब मेरा देन है यहाँ पे, ये देन कंडीशन थी, तो ये बाहर क्यों आया, ये बाहर क्यों आया, ये इसलिए बाहर आया है बिकॉज अगर इसको ये पार्ट मिल जाता है, इफ़ इट चेक्स दिस पार्ट, तो ये इन सब को एल्स की तरह ट्रीट करेगा. ठीक है, इट विल बी ट्रीटिंग ऑल दिस एज एन एल्स कंडीशन. देखो बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये एल्स के अंदर आ रहा है पूरा पार्ट. देखिए एल्स इफ का एक पार्ट होता है, दिस पार्ट इज ऑफ देन एंड दिस पार्ट इज ऑफ एल्स. इसके अंदर भी मैंने इफ़ लगाया है देन एंड एल्स का.
आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. अब यहाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर डाल दूंगा ZX अगेन, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट सी व्हाट हैपेंस नाउ. वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द फंडा. ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बना के हमें फंडे क्लियर करने. एटॉमिक वर्कफोर्स वी हैव टू मेक टू क्लियर अवर फंडास, राइट. स्टेप इनटू अगेन, सॉरी. एंड अब देखिए यहाँ पे ZX नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ये इस कंडीशन को चेक करेगा या नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली इसने ये कंडीशन को चेक किया है, राइट. ये कंडीशन को चेक किया क्यों, क्योंकि ये देन है, ये एल्स है. इस एल्स के अंदर एक और इफ है, ठीक है. तो दिस इज नेस्टेड और कंटेन्स टू, इसने यहाँ प्रिंट कराया. अब एक अगर हम ऐसा सिचुएशन कर देते हैं दैट इफ़ वी आर नॉट हैविंग, ऐसे कुछ लिख देते हैं, राइट, राइट, वी something like that. Let's see what happens now. I just want you guys to understand what is this thing going on over here. ठीक है. अब ये इसके अंदर गया, ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये वाला भी रॉन्ग है, बिकॉज क्या है, डब्ल्यू ई नहीं है उसके अंदर. गाइज उसके अंदर नहीं. प्लीज सी दिस पार्ट. वी डोंट हैव अ डब्ल्यू ई विद एस, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट सेइंग दैट डज नॉट कंटेन्स, ठीक है. यहाँ पे डज नॉट कंटेन आएगा. तो ये मैंने खाली राइट लाइन यूज़ किया आपको दिखाने के लिए, जस्ट प्रिंटेड सम वैल्यू इन द आउटपुट, बट आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन योर पास एंड दिस यू विल बी यूजिंग इन योर कैरियर मैनी टाइम्स, ठीक है. तो दिस इज़ अ प्रिटी सिंपल डेमो ऑफ एल्स इफ मैंने आपका पूरा घोट के पिला दिया है, ठीक है. तो अब भूलना मत भाई, ठीक है. डोंट फॉरगेट दिस, राइट. So this was it guys. Else if condition is very simple, and in the next video we will be seeing that what is a for each loop. हम सबसे पहले for each loop देखेंगे, then we will be seeing while and then do while. These all three are loops. This is the conditional statement. Don't confuse this with as a loop because ये loop नहीं है, ये हमारा statement है. This is a conditional statement. Yes or no, true or false, boolean, हाँ या ना. Yes or no means boolean value, true or false boolean value, ठीक है. तो we will be what next, we will be seeing for each loop, then while, and I'll be telling you some classic scenarios of for each loop. कैसे हम Excel sheet को automate कर सकते हैं. Inside we can use a data table as well inside a for each loop. Both of the activities I'll let you know, ठीक है, inside of this part. So इस वीडियो के लिए इतना ही guys, because I have promised I'll be making atomic videos on a small part so that you guys can learn it, right. So if you like the content, don't forget to like, share and subscribe guys. Please support me, okay. And I just want to all the knowledge I have should be transferred to you guys, right. So and we are following the academy over here. तो जो भी सर्टिफिकेशन है UIADA या UIADP, एसोसिएट डेवलपर प्रोफेशनल और एसोसिएट ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल और ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट, वी आर फॉलोइंग ओवर हेयर, राइट. सो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. अगर मैंने वीडियो पहले बता रखी है तब भी मैं उसको अगेन आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर दैट पार्ट एज वेल, ओके. सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड एज ऑलवेज कीप learning.